Good evening to one and all present here. It's a great pleasure for me to introduce our today's guest speaker, Mr. Jamin Kumar Bhatt sir. Talking about his skills, Sir has deep knowledge in designing and modeling in AutoCAD, Inventor 2015, Fusion 360, and Solid Edge, additive manufacturing, production planning and layout design, product development, machine fabrication, solid waste management, quality management, Excel, waste to resource, and many more. Now coming to education, he has done master of technology from SVNIT Surat, Gujarat, bachelor of engineering from GTU Gujarat, and also he has he is working as an assistant professor in ITM Vocational University Vadodara since 2016. He is SSIP coordinator, Unnat Bharat Abhiyan coordinator, looking after entrepreneurship, technical projects, Alumni Connect, technical training and teaching for engineering, drawing, manufacturing, engineering, renewable energy resources, rapid prototyping and tooling, machine design, coordinator for engineering project, and many more. Now coming to activities, environment expert in VNM TV news channel, Society Awareness Campaign video series for Environmental Excellence Award, guided projects like leaf cut, cutlery making machine, electric vehicle, eco home, earth mechanical ventilation system, and many more. He has also conducted various conference trainings and workshops, which include webinar on functional composite materials, scopes and challenges, faculty development program on green technology and sustainability engineering, and national conference on tribal livelihood opportunities for better tomorrow, faculty development program on entrepreneurship, oral presentation on sustainable living at Tech Force Seva 3-day national workshop, civil defense basic training with A grade at ITM VU Vadodara, and many more. I welcome you, sir, on behalf of ISTD Anand family. And I also welcome all the students who have joined from SB Jain Engineering College, Nagpur. And now I invite sir to start the session. Thank you. Thank you so much, Amruta madam, for such a brief introduction. Thank you all guests and all students, and special thanks to ISTD to give me this opportunity. So let me share screen first. And today we lost our great environmentalist. Like before starting this particular webinar, like I want to give tribute. Okay, our talk is on sustainable living for better tomorrow. Like, so we all talking about, like UNDP, United Nations is talking about the sustainable development. They also give us 30 goals, like means there are 17 sustainable development is goal given, which we need to achieve it by 2030. किसके लिए अचीव करना है हमें? फॉर बेटर लिविंग. हमें अगर बेटर लिविंग चाहिए तो हमें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने होंगे, ना ही सिर्फ इंडिया को बट पूरे जितने भी कंट्री है वर्ल्ड में वो सबको सस्टेनेबल लिविंग या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने होंगे. तो next 1 hour or 1.5 hour talk will be on sustainable living for better tomorrow. Today around 12 p.m. we lost our great environmentalist श्री सुंदरलाल बहुगुणा. आप सबने सुना होगा, लाइक हमने हमारे टेक्स्ट बुक में स्कूल स्टडीज में पढ़ा हुआ है चिपको इवेंट. क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है चिपको इवेंट किसके बारे में है? हाँ सर, चिपको इवेंट में क्या था कि वो लोग ट्रीज काटने आए थे
तो गांव वालों ने ट्रीज को बचाने के लिए ट्रीज के साथ गले मिलकर वो किया था। ओके, गुड। तो चिपको इवेंट जो एक झाड़ के साथ जुड़ा हुआ है, रिनाउंड इवेंट है, उसमें जो लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिसको पद्मश्री भी मिला हुआ था। तो उनका एट एज ऑफ 94 इयर्स आज डेथ हुई है ड्यू टू कोविड-19। लाइक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। रिसेंटली गुजरात फेस साइक्लोन। ओके, तो वो एक हो रहा है क्लाइमेट और क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण काफी सारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। ओके, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लाइक बीइंग एजुकेटेड सिटीजन ऑफ द इंडिया, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हमें मीन्स विदाउट एनी नॉलेज, लाइक टेक्निकल नॉलेज की भी उसके लिए जरूरत नहीं है, डे टू डे लाइफ में हम कुछ चेंज करेंगे तो हम सस्टेनेबल लिविंग जी सकते हैं। या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? मेजरली हम डिपेंड रहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। our every businesses, our day-to-day life, our every need depend on the natural resources. What are the natural resources? Air, water, land. यही है क्या? मुझे आप बोल सकते हो पानी के बिना हम रह सकते हैं? नो सर। नहीं। ओके, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, हम एयर के बिना नहीं रह सकते हैं। कोविड-19 ने तो अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है। लाइक डॉक्टर या कोई भी लव्ड वंस हमें क्या बोलता है? ह्यूज अमाउंट में पानी पियो अगर कोरोना से बचना है, और मास्क पहन के रखना एयर, चाहिए। फ्रेश एयर लो। यस सर। लाइक ऑक्सीजन लेवल सबके डाउन हो चुके हैं। तो क्या हमें मीन्स व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? लिविंग और कंज्यूमिंग इन सच अ मैनर दैट all the resources, not only a natural resources, but हमारे पास जो सिंथेटिक रिसोर्सेज भी हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, उन सभी को हमें इस तरीके से कंज्यूम करना है कि वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए यूजफुल रहे। लाइक वी नीड टू live in such a manner, or we need to consume our resources in such a manner that it will available for the next generation. पानी है, एयर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, उसको हमें उस तरीके से कंज्यूम करना है कि हमारी 4th जनरेशन 5th जनरेशन को पता चले कि नहीं भाई पेट्रोल या डीजल था, या पेट्रोल डीजल ऐसे वर्क करता है। ओके, तो उसके रिलेटेड आई विल एक्सप्लेन माय एफर्ट, simple effort followed by me to live sustainable living. Means I am not living 100% sustainable lifestyle, but I try to live 100% sustainable living. Okay, so these are the pictures very common taken by me during my visit to various places. Like this photograph is of Tapi River in Surat during my MTech. गणेश विसर्जन होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे आइडियल्स जिसको हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, वो सब मटेरियल हम डंप करते हैं रिवर में। ओके, ये मेरे होम टाउन का पिक्चर है जहाँ पे रिवर के बेड के बाजू में ही क्या रखा हुआ है, हमारा वेस्ट डंप किया हुआ है। यहाँ पे अलग ही इस तरफ आपको एक कोलाज दिखेगा। अगर आप बड़ौदा में रहते हो लाइक या नियर बाई, इफ यू आर लिविंग इन बड़ौदा और नियर बाई बड़ौदा, पावागढ़ सबने सुना होगा। ओके, महाकाली जी का वहाँ पे मंदिर है अच्छे से, और एक अच्छा सा फॉरेस्ट एरिया है।
तो वहां पे आप देख सकते हो कि नेचुरल ब्यूटी में लाइक बड़ा ही अच्छा सा नेचर। मानसून था, मानसून की विजिट में जब विजिट कर रहे थे मैं और मेरे फ्रेंड्स, तब हमने ये फोटोज खींची हुई है मैंने पर्टिकुलरली। या हमारे फैमिली में 2018 में मेरे थे उसके बाद का, या वहाँ पे एक पर्टिकुलर काउंटर का एक फोटो है जहाँ पे आपको प्लास्टिक वेस्ट, काफी सारा सिंगल यूज प्लास्टिक दिख रहा है, प्लास्टिक के कप्स दिख रहे हैं। बट व्हाट वी लाइक स्टिल अगर हमारे वीकेंड्स को हमें एंजॉय करना है, इफ यू वांट टू एंजॉय अवर वीकेंड्स वेकेशंस, हम कहाँ पे जाना प्रीफर करते हैं? वी प्रीफर टू गो टू दी नेचर। हम ऑलवेज ये प्रीफर करेंगे कि हम पूरी होने कहीं पे भी नेचर की गोद में जाए। अगर शॉर्ट वीकेंड लाइक करना है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के लोग जनरली कहाँ जाते हैं? लोनावाला, खंडाला, पूरा वेस्टर्न घाट वहां पे पड़ता है। ओके, महाबलेश्वर जाएंगे, पुणे के आजू बाजू लोकेशंस काफी सारे अच्छे हैं, वहां पे ही जाना पसंद करेंगे। अगर बड़ौदा है तो बड़ौदा में हम प्रिफर करेंगे कि पावागढ़ चले जाए। ओके, नियर बाई प्लेस काफी सारे हैं वैसे। अवर वीकेंड्स लाइक अगर हम कहीं वलसाड़, वापी, दीव, जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है साइक्लोन में, वहां पे अभी अगर हम जाएंगे सीसोर पे, तो वी जनरली और वी ऑफ्टन एंजॉय विथ अवर फैमिली। बड़ा सा सनसेट का फोटो क्लिक किया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ चीज भी दिख रही होगी जो आपको लगेगी लाइक कि क्या जयमीन सर को फोटो क्लिक करना नहीं आता? ओके, बट सोचिए पर्टिकुलर जो छोटे बच्चे हैं जहाँ, प्लास्टिक ओके यहाँ पे देखो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसका क्या फ्यूचर? अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो लाइक चूज एनी वन वेयर यू वांट टू गो, या किस तरीके से लाइफस्टाइल आपको चाहिए फ्यूचर में। लाइक यहाँ पे आपको लगेगा एक जिम कॉर्बेट का इमेज है, और ये भी मीन्स उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट का इमेज है। ये वन ऑफ द फेमस तिथल बीच इन वलसाड़, वहाँ की इमेज है। ये जो इमेज है वो है नॉर्थ कर्नाटका, डांडेली करके प्लेस है, साथोड़ी फॉल्स, उसके पास का एक प्लेस था, वहाँ की इमेज है। और ये तो प्रैक्टिस होती ही है। हम क्या करते हैं जनरली? स्टायरोफोम प्लेट्स यूज करते हैं हमारे फंक्शंस में, हमारी कोई इवेंट में, और जनरली उसको बर्न करते हैं। okay, which is very bad practice for solid waste management। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप टॉप वाली इमेज करोगे पसंद, बट ऑलवेज जाना हम कहाँ पे पसंद करेंगे? ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे माउंटेन्स हैं, फ्रेश वाटर है। ओके, लाइक इंजॉय करते हैं हम जनरली। अगेन दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ पावागढ़। आई होप जो बड़ौदा से होंगे या मीन्स आनंद से जो लोग होंगे वो पावागढ़ गए होंगे तो इसको रिकॉल कर पाएंगे। लाइक ये एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। और दूसरी जगह पर इन रेस्टोरेंट्स what we find different type of waste, like there is a cardboard, means paper type waste, plastic bottles which consist PET, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो PET है, पेट। क्या नुकसान क्या होगा? लाइक आप बोलोगे सर कोविड-19 में तो मेजोरिटी यूज हुआ है, या जयमीन जी कोविड-19 में तो मेजोरिटी बोल रही थी यूज एंड थ्रो यूज कीजिए, या प्लास्टिक तो हम सालों से यूज करते आए हैं।
पेट बोतल में जब भी आप कोई फूड आइटम कैरी करते हो और वो सन के एक्सपोजर में आता है, लाइक हीट अप्लाई होती है उसके ऊपर, सन की हीट इज लाइक सन हीट इज कैपेबल टू डिग्रेड दैट पर्टिकुलर प्लास्टिक, तो कार्सोजेनिक डिसीज होने के आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, कहीं पे भी अगर आपको लाइक मोर टेक्निकल या समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। यह है आफ्टर मैरिज, लाइक मोस्ट ऑफ टाइम एक नई जिंदगी की हम शुरुआत करते हैं। ओके, एक कपल के लिए क्या होता है, पूरा एक नया जर्नी स्टार्ट होता है अपनी लाइफ का। बट ऑफ्टन वो प्लेस में क्या होता है, उनके लिए लाइक कहीं ना कहीं उनको हार्म करेगा ऐसा वेस्ट जनरेट होता ही है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, बट ऐसा कुछ हमें दिखता ही नहीं है। तो क्या टू मेक स्वच्छ भारत, is it only responsibility of government of India or government of Gujarat? No. Okay, ये सब वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक इट इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द सिटीजन एंड गवर्नमेंट। क्या हमें करना चाहिए इसके लिए अगर हम बात करें तो बेसिक, पहले वेस्ट को ही लाइक जो भी चीज वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है उसको रिफ्यूज करो, पहले मना ही बोलो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सब्जी लेने जा रहे हो मार्केट में, तो वो अगर प्लास्टिक पॉलीथीन हमें दे तो उसको बोलो भाई मुझे नहीं चाहिए। एंड मुझे खुशी हो रही है बताते हुए लाइक मार्केट में या सोसाइटी में आज इतनी तो अवेयरनेस आ गई है। अगर आप कोई वेजिटेबल कीपर को बोलोगे, लाइक जो वेजिटेबल बेच रहा है मार्केट में जाके, मुझे प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं चाहिए, अगर वो अच्छा आदमी होगा, लाइक उसको पता चल रहा होगा एनवायरमेंट का, तो वो 2 ग्राम या 100-200 ग्राम ज्यादा डाल देगा सब्जी। ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। ओके, तो बेनिफिट है, एक बार ट्राई कीजिए। वी आर डिपेंड ऑन, किसके ऊपर हम डिपेंड है, वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, जल, वायु। ओके, वाटर, विंड, अर्थ, फायर एंड स्पेस, इन सब के ऊपर हम डिपेंडेंट है। किसी भी एक चीज के बिना हम नहीं रह सकते। ऑफ्टन वी बिल्ड अवर ड्रीम हाउसेस, ड्रीम बिजनेसेस ऑन अर्थ। विंड का सबको पता है, लाइक अगर विंड नहीं होती तो लाइक 2 दिन पहले की विंड होती अगर तोकते जैसी, साइक्लोन तोकते सबको पता है। और अगर कोई लाइक जिसका नेटिव हो ऊना, दीव या सौराष्ट्र रीजन, तो उनको पता होगा कि कितना डैमेज हुआ है। Okay, but often like generally drying our crops, our cloth to bring the monsoon, like to bring the rain, wind is important. With the help of wind, we also extracting energy, renewable energy. Okay, wind turbine. अर्थ, अर्थ हमें हमारी ज्वेलरी के लिए गोल्ड भी देता है, सिल्वर भी देता है, साथ में लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हमें जाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो लिथियम चाहिए वो भी हम अर्थ में से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्लास्टिक जिससे बनता है, हमारी कन्वेंशनल डीजल कार और पेट्रोल कार चलती है, जो लुब्रिकेंट्स हम यूज करते हैं वो क्रूड ऑयल, जिसकी मदद से हम फिर बाद में काफी सारे डेरिवेटिव्स बनाते हैं उसके, वो अर्थ से मिलेंगे। कोल मिलता है, कोलसा। हाँ, कोलसा मिलता है, मतलब लाइक देयर आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ। ओके, एंड फायर,
तो विदाउट फायर वी कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग, लाइक कुकिंग ही हम इमेजिन नहीं कर सकते। भले ही एलपीजी स्टोव आ चुके हैं, बट उसको स्टार्ट करने के लिए तो फायर ही चाहिए। जो हमारे ऑटोमेटिक स्टार्टर होते हैं उसके लिए भी मुझे फायर चाहिए। ओके, तो हर एक बेसिक चीज के लिए लाइक फायर इज रिक्वायर्ड। एंड स्पेस, स्पेस मतलब यूनिवर्स, खुला आसमां जहां पे मुझे उड़ जाना है। तो स्पेस की मदद से हम हाईराज हम क्या कर सकते हैं, बाय डेवलपिंग दी सैटेलाइट डिफरेंट प्लेनेट में हम जा सकते हैं। सोलर एनर्जी हमें मिलती है स्पेस की मदद से। ओके, तो लाइक लेट्स डिस्कस what are the solid waste we are creating. We are basically creating solid waste. One classification is wet waste and second one is dry waste. तो क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट? या किसी को भी पता है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मेजोरिटी हमें पता नहीं होता है, तो या पता हो तो अच्छी बात है। मैं बताता हूँ आपको। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के अकॉर्डिंगली जनरली हमारा वेस्ट कौन कलेक्ट करता है? जनरली हमारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं म्यूनिसिपालिटीज, नगर पालिका। जो भी वार्ड होंगे, वार्ड में से पर्टिकुलर कॉर्पोरेट या मीन्स जो म्यूनिसिपालिटी होगी या नगर पालिका होगी, वो आपका वेस्ट कलेक्ट करती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल में ऐसा लिखा हुआ है, लाइक वन ऑफ द स्टेटमेंट सेड दैट नो म्यूनिसिपालिटी will collect your wet waste. Means no municipality is responsible to carry your wet waste. Wet waste क्या हो गया? बायोलॉजिकल मैटर। कैसी बायोलॉजिकल मैटर? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, vegetable and fruit or fruit peels are considered as a wet waste, either cooked or uncooked. दोनों तरीके का जो वेस्ट होता है वो हमारा वेट वेस्ट होगा। ड्राई ग्रास और any like any animal manure including human, it is also called as wet waste. Any tree waste like सूखे पत्ते जो गिरते हैं, ड्राई लीव्स, ग्रास, वो भी वेट वेस्ट में आएगा। जो पीरियोडिकली डिग्रेड होते हैं ओवर द टाइम, जिसका विक्टन होता है। ओके, गुजराती में जनरली क्या बोलते हैं? विक्टन बोलते हैं। वो हुआ वेट वेस्ट। और ड्राई वेस्ट जो भी चीज डिग्रेड नहीं होगी नेचुरली, पर इधर रिसाइकल हो सकती है, ऐसी चीजों को हम बोलेंगे ड्राई वेस्ट। अभी ऑफ्टन एजुकेटेड पीपल भी गलत चीज बोलते हैं, लाइक अगर मैंने कोई कप में आइसक्रीम खाया हुआ है, प्लास्टिक कप हो या मेटल कप हो, उसका कंडीशन है वो वेट है क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाया था, तो उसका ओरिजिनल कंडीशन होगा वो वेट होगा। बट उसको हम कौन सा वेस्ट कंसिडर करेंगे? ड्राई वेस्ट कंसिडर करेंगे। Okay, any material made out of the paper, ceramic, glass, metal, plastics are our dry waste. Like तो अभी
हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिसेस, जो छोटी बड़ी प्रैक्टिसेस मैंने पर्सनली एट माय होम एंड एट माय वर्क प्लेस ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में की हुई है। ये जो फ्लावर है, फ्लावर वेस्ट, जनरली वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं जब भी कॉलेज में या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सोसाइटी में, तो वहाँ से फ्लावर वेस्ट कलेक्ट करते हैं हम कर सकते हैं टेम्पल से। ये जनरली मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि चलो प्रोजेक्ट करते हैं, आप अपने नियर बाय एरिया में जो टेम्पल्स हैं वहाँ से फ्लावर वेस्ट कलेक्ट करो, उसको हम काफी सारी प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कंपोस्ट में ही कन्वर्ट करना है, बट वन ऑफ द वे इज टू कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। ओके, खाद बनाना है। अब खाद बनाना जनरली क्या है, एरोबिक प्रोसेस है। अगर हम उसकी प्रोसेस देखें कि हाउ एनी वेट वेस्ट कन्वर्टेड इनटू अ कंपोस्ट, so it is aerobic process। अब सिंपल वर्ड में एरोबिक प्रोसेस बतानी है अगर मुझे, तो क्या होगा एरोबिक प्रोसेस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ बैक्टीरिया जो डेवलप होंगे, माइक्रोब्स जो डेवलप होंगे, वो पर्टिकुलर हमारे वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट करेंगे। करना कुछ नहीं है हमें, हमारा ओल्ड ऑयल कंटेनर हो, टूटी हुई बकेट हो प्लास्टिक की, या स्पेशल मटका, ओके, जो मिट्टी का बना हुआ मटका आता है वो, उसमें छोटे छोटे होल कर देना है। मटके के केस में आपको होल नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वो परमिएबल होता है, उसके अंदर हवा आ जा सकती है लाइक, इसीलिए हमारा मटके का पानी कूल रहता है, स्पेशली इन समर। ओके, समर में अगर ठंडा पानी पीना है मटके का तो इजीली आपको मिल जाएगा। तो एक प्रैक्टिस है वेट वेस्ट को कन्वर्ट करना है कंपोस्ट में। अदर वे टू हैंडल वेट वेस्ट, अब उसकी भी काफी सारी मेथड्स है। एक एरोबिक डाइजेशन, दूसरा है एनारोबिक डाइजेशन। तो कॉलेज ने स्पॉन्सर किया था एक प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था, इट इज अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिसेंटली डेवलप हुई है, सालों पुरानी बायोगैस प्लांट टेक्नोलॉजी है, बट क्या हर एक घर में हम उसको यूज करते हैं कि नहीं करते? वो हर एक हाउस होल्ड में वो नहीं होता। तो जनरली बायोगैस डेवलप किया था, डाइजेस्टर है, आफ्टर डाइजेशन जो मेन्योर निकलेगा उसका कलेक्शन है, एंड ऊपर ट्यूब में गैस कलेक्शन। हमारी कॉलेज की कैंटीन के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन के लिए पर्टिकुलर मॉडल बनाया था। फूड क्रशर है जहां पे आप अपना वेट वेस्ट, जो भी अनकुक्ड और लेफ्ट ओवर फूड, कुक्ड फूड जो निकलता है उसको यहाँ पे आप क्रशर में डाल सकते हो। घर पे भी आप बना सकते हो, छोटे छोटे पीस कर दो आपके जो वेस्ट है, क्योंकि घर में जो वेट वेस्ट निकलेगा वो इतना लार्ज क्वांटिटी में नहीं होगा। अगर देयर इज अ फैमिली ऑफ 4 to 5 पीपल, ज्यादा वेस्ट नहीं निकलेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ एक क्लोज कंटेनर लेना है, एयर प्रूफ। उसको एक तरफ इनलेट रखना है, एक तरफ आउटलेट रखना है, और ऊपर की तरफ गैस को स्टोर कर सके ऐसा कोई डिवाइस रखना है। ओके, तो आप उसमें एनारोबिक प्रोसेस से बायोगैस कन्वर्ट कर सकते हो, और बाकी जो लेफ्ट ओवर बचेगा वो हमारा खाद होगा, मैन्योर। ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस में मीथेन प्रोड्यूस होता है। अगर आप मीथेन को रिलीज कर दोगे एनवायरमेंट में तो वो सबसे बड़ी थ्रेट है एमेजोन मींस ओजोन लेयर को डिप्लिशिएट करने के लिए। डेली आनंद से जो लोग हैं तो उन लोगों को पता है, लाइक अमूल, जय मीन्स who is basically from Anand, all are
वेल नोन अबाउट दी डेयरी पैकेजिंग. डेयरी पैकेजिंग का पता होगा क्योंकि अमूल प्रोडक्शन यूनिट इज लोकेटेड इन आनंद. तो जनरली जो पैकेजिंग होता है, हमारे डेली हम जो कंज्यूम करते हैं, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, वो सब डेयरी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है वो प्लास्टिक होता है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन. 2 नंबर, कभी उसके ऊपर रिसाइकलिंग का सिंबल दिखेगा आपको एंड 2 लिखा होगा. तो वो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है. अब आप बोलोगे सर हम जो वेस्ट जो डालते हैं इसमें, आप बोलोगे जयमीन जी ये वेस्ट तो म्यूनिसिपालिटी तो कलेक्ट कर ही रही है, बट क्या कभी आपने आपकी घर में से जो वैन लेकर जाती है वहां पे जो वर्कर वर्क कर रहा है उसको देखा हुआ है? आपका वेट वेस्ट अंदर होगा. अगर आप अपना डस्टबिन एनालिसिस करोगे, सबको एक बार जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डस्टबिन एक बार देखना चाहिए. डस्टबिन अगर हम देखेंगे तो उसमें से 60% वेट वेस्ट होगा. 60% जो वेस्ट होगा वो होगा अनकुक्ड वेजिटेबल पील एंड फ्रूट पील, लेफ्ट ओवर फूड. और रेस्ट ऑफ 40% इट विल बी ऑफ पैकेजिंग. तो आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ब्रिंग 4 to 5 milk pouches daily and 1 to 2 buttermilk or curd, simply after empty it, और empty करने में भी उसको पूरा कट कभी नहीं करना है. अगर आप उसका छोटा पार्ट कट करोगे और वो कहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो डस्टबिन में गया, डस्टबिन में से या कहीं बाहर स्ट्रीट में गया, तो वो ईयर बाय ईयर डिग्रेड होके हमारी लाइफ साइकिल या हमारी फूड साइकिल में आ सकता है. कैसे? वो छोटा पार्ट अगर कहीं स्ट्रीट में चला गया. ओके, जनरली हमें वो इससे छोटे पैकेट्स को डस्टबिन में डालने की आदत नहीं होती, घर में भी हो तो भी. अगर वो कहीं बाहर स्ट्रीट में गया और किसी गाय ने खाया, वो छोटा सा आपने टुकड़ा जो कट किया है अपना मिल्क निकालने के लिए, बटर मिल्क निकालने के लिए, तो वो गाय खाएगी या वो ईयर बाय ईयर डिग्रेड होगा. और कहीं ना कहीं वो वाटर में, हमारी जो वाटर है या हम जो प्लांट ग्रो कर सकते हैं या जो हम मिल्क पीते हैं उस चैनल में कहीं ना कहीं वो एंटर होगा और फ्यूचर में हम उसको कंज्यूम करेंगे. तो मेरी प्रैक्टिस थी पर्सनली, लाइक बीइंग इंजीनियर, व्हाट इंजीनियर्स डू. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे काफी सारे इंजीनियर भी होंगे, लाइक आप इंजीनियरिंग एज अ स्टूडेंट. इंजीनियर एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन करनी है और जो भी इफिशिएंट वे में कोई भी काम को करना और इंजीनियर को एनवायरनमेंट का लाइक ध्यान भी रखना. हाँ मीन्स एनवायरमेंट का ध्यान तो हमें सभी को रखना है. लाइक वो भले ही फिर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमन को एनवायरमेंट का तो ख्याल रखना ही है. ओके, बट इंजीनियर क्या करते हैं? एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी मदद से कुछ एप्लीकेशन देंगे सोसाइटी को. ओके, तो उसमें से प्रोडक्ट्स बनाई हुई है. लाइक ये कंप्रेशन मोल्डिंग से बना हुआ है. ये जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक है उसमें और इपोक्सी की मदद से सीट बनाई हुई थी और ये पेवर ब्लॉक बनाया हुआ था. और उसकी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भी देखी हुई थी. अब कोई चीज आप बनाते हो, ये सब क्या होंगे? स्ट्रक्चरल मटेरियल होंगे. ये सीट की मदद से आप फर्नीचर बना सकते हो, बेंच बना सकते हो. उन सबको जॉइंट करने के लिए आपको स्क्रू अप्लाई करना पड़ेगा, नट बोल्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, उसको कट करना पड़ेगा. तो पर्टिकुलर वेस्ट को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है और उसके ऊपर लाइक आप प्रोसेस भी कर सकते हो और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया हुआ है.
इस प्रोडक्ट को मैं प्रिफर नहीं करूंगा आउटडोर एप्लीकेशन के लिए। लाइक ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाई हुई है वो अगर डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में आएगा और ओवर द पीरियड ये वाटर की साथ लाइक नेचुरल रेन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म ही करते हैं। कोई भी आपका अगर पैकेजिंग है, डेयरी पैकेजिंग, वो एनवायरनमेंट में रहेगा ओवर द टाइम degraded by degradation of the sun and means by natural degradation, वो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है। इंडोर एप्लीकेशन में वो इजीली काम हो सकता है, घर में बेंच बनानी है, राइटिंग डेस्क बनाना है, ओके, वहां पे आप यूज कर सकते हो। दूसरा इकोब्रिक, काफी सारे एनजीओज वगैरह ये कर रहे हैं। हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम भी हमारे सराउंडिंग में काफी सारी ऐसी पेट बोतल और नॉन रिसाइकल एनी नमकीन प्रोडक्ट पैकेजिंग लाइक बालाजी, सम्राट या कोई बिस्किट पैकेजिंग, वो जो मटेरियल होता है प्लास्टिक मटेरियल, वो मल्टी लेयर प्लास्टिक होता है। 7 नंबर अदर प्लास्टिक ग्रेड होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है और वापस कोटिंग होता है। लाइक वो एक मल्टी लेयर प्लास्टिक या पैकेजिंग है, उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है। तो एक सिंपल वे में आपके पास अगर पुरानी पेट बोतल पड़ी हुई है तो पेट बोतल में उसको कंप्रेस करके भर दीजिए, तो ये एक्ट करेगी इकोब्रिक की तरह। अब बाय यूजिंग सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होगा, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। आपको कंपोस्ट पीट बनानी है, आपको कोई वॉल क्रिएट करनी है, आपका होम बनाना है, इको होम, अर्थ होम, ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट है, आप उसको गूगल कर सकते हो, लाइक अर्थ होम या इको होम। तो वहां पे ग्लास बोतल, प्लास्टिक बोतल ऐसे इकोब्रिक यूज करते हैं। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट यूज करेंगे इसकी एंड एप्लीकेशन। ओके, आप अपनी कॉलेज में भी कर सकते हो या अपने सराउंडिंग में भी। दूसरी एक प्रैक्टिस है, क्या किसी को पता है 20th, आज 21st में है, 20th में सेलिब्रेटेड एज एक वर्ल्ड वाइड इवेंट होती है, एक डे मनाते हैं 20th मई को, बी डे। ओके, अच्छा नाम रहेगा वर्ल्ड बी डे। what are the importance of the honey bee in our life or in our world? बताएगा कोई? हमारा मीन्स हनी बी है, छोटी सी बी क्या कर सकती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? पोलिनेशन, गुजराती में अगर लाइक पोलिनेशन समझ में ना आए तो गुजराती में बोल सकता हूँ उसको पुष्परज, परागनयन। ओके, परागनयन, रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ आवर ट्रीज। जो भी रिप्रोडक्शन सिस्टम होती है हमारे ट्रीज की, लाइक हाउ वी गेट फ्रूट, हाउ वी गेट फ्लावर, तो there are the pollinators, different pollinators are available like birds, bee, butterflies, वो pollination का काम करता है। ओके, और दूसरा उसके ऊपर भी हम बिजनेस करते हैं, लाइक हनी बी कल्टीवेशन करेंगे, हनी बी को कल्टीवेट करेंगे और हनी का प्लांट डालेंगे। ओके, तो एक बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, यूनिक डिजाइन होती है।
अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी स्पेसक्राफ्ट में स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है जनरली? अगर कोई स्पेस के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने हो, स्ट्रक्चर्स बनाने हो कोई, तो वो लाइट वेट होने चाहिए और स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो हनी बी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। इसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है और इम्पैक्ट लोड कैपेसिटी होती है, अब उसके ऊपर लाइक आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इनसाइड दी हेक्सागोनल क्लोज पैक अगर स्ट्रक्चर होगा, उसको आप जितना भी कंप्रेस करो लाइक उसकी परमिसिबल लिमिट में, कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, आप उसके ऊपर हथौड़ा मारते हो, जितना भी बड़ा इम्पैक्ट आए वो ज्यादा होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसमें से मध तो निकाल देते हैं, हनी बी सॉरी हनी तो हम निकाल ही लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, बट जनरली हनी बी का ये जो कोम्ब होता है वो हम छोड़ देते हैं। उसकी मदद से आप वैक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हनी बी वैक्स एक्सट्रैक्ट आप घर पे कर सकते हो। डबल बॉयलर करके आपको क्या करना है, डबल बॉयलर करके वैक्स को रख देना है और वैक्स को आप मेल्ट कर सकते हो। एक बार वैक्स मेल्ट हो जाए, या गर्म पानी में, गर्म पानी के ऊपर आप ये डाल सकते हो हनी कोम, हनी बी कोम। ड्यू टू हीट इसके अंदर जो भी वैक्स रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा। बाद में वो पानी को कूल कर दो, आपको ऊपर की तरफ एक लेयर बन जाएगा। ओके, ऊपर की तरफ आपका एक लेयर बन जाएगा वैक्स का। तो वो वैक्स को आप कलेक्ट कर लो और उसको डबल बॉयलर की मदद से आप उसको प्योरीफाई करो, तो आपको ऐसा एक वैक्स मिलेगा। अब वैक्स की एप्लीकेशन क्या है? तो एक एप्लीकेशन मैंने बनाई थी लिप बाम, लिप गार्ड हम जो यूज करते हैं वो बनाया था। इसमें क्या क्या है, ये प्रोडक्ट डेवलप की थी कोकोनट ऑयल, हनी बी वैक्स एंड विटामिन ई, और बाकी आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो, लाइक एसेंस डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल रोज एक्सट्रैक्ट, एप्पल एक्सट्रैक्ट, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, लीची, एज पर योर चॉइस। ये सैंपल्स मैंने मेरे फैमिलीज में लाइक सिस्टर, भाभी, सिस्टर इन लॉ, माय वाइफ, मदर और बाकी मेरे कलीग्स सभी को दिया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट प्लानिंग भी है लाइक कि इसके फ्यूचर में बॉडी लोशन आप बना सकते हो, लिप बाम बना सकते हो, शू पॉलिशिंग बना सकते हो। एल्यूमिनियम फॉइल का भी अल्टरनेटिव है इस बी वैक्स की मदद से। फॉर एग्जांपल आपके पास को अगर कोई कॉटन का क्लॉथ है, उसके ऊपर आप बी वैक्स अप्लाई कर दो मेल्ट करके, तो क्या हो जाएगा, आपको एक क्रीज हो सके, फोल्ड हो सके, ऐसा आपको कॉटन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप अपने वेजिटेबल को व्रैप करने के लिए, आपका फूड को व्रैप करने के लिए यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर वैक्स होगा तो कोई उसके पास क्या एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है? हाँ, उसके पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ओके, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ओके, जो मुझे पहचानते हैं वो बोलेंगे सर अभी आपके पास तो बाइक है, आपके पास साइकिल नहीं है। बट 2018 में मेरे पास साइकिल थी। लाइक by my earning I first bought cycle for my transport as a transport medium within the city और across the city। तो जनरली मैं मेरे वर्क प्लेस में जहाँ से मुझे बस पिक करनी थी वहां पे मैं साइकिल लेके जाता था, अराउंड दी 2.5 किलोमीटर डेली, सिंगल साइड, मतलब डेली 5 किलोमीटर साइकिलिंग टू एंड। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक में जनरली शुगर केन, हरिनगर,
बड़ौदा में हरिनगर करके एक प्लेस है, वहां से मैं एक शुगर कैन वाले से वहां से मैं स्ट्रो कलेक्ट करता था। जनरली उसकी प्रैक्टिस क्या रहती थी, शुगर कैन जूस शॉपकीपर था, वेंडर था शुगर कैन जूस का। शुगर कैन जूस मतलब शुगर कैन में से जो जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं बाद में जो बचता है उसको बगास बोलते हैं। वो बगास जनरली वो एक सेफर्ड को देते थे, जो जनरली काऊ को या काऊ को फीड करता था, एनिमल को अपने सेफर्ड। ओके, बट उसमें वो जनरली सिंगल यूज प्लास्टिक की स्ट्रो डंप करता था, बाकी जो प्लास्टिक कप थे वो डंप करता था। तो मैंने उनसे सिंपल बात की कि भाई मैं डेली यहाँ से गुजरता हूँ आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई जॉब, मैं देखता हूँ कि मीन्स ये प्रैक्टिस करते हो, क्या आप मुझे वो वेस्ट दे सकते हो? तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ शुगर केन जूस वाले से मैं कौन कौन से मटेरियल को सेव करता था। ओके, तो जनरली ये मेरी प्रैक्टिस थी, लाइक इतनी सारी स्ट्रो, सिंगल यूज स्ट्रो कलेक्ट की थी, अराउंड 1.2 किलोग्राम। इसका वेट कितना होता है वो आपको पता होगा, तो अराउंड 1.2 किलोग्राम जो मैंने स्ट्रो कलेक्ट की थी, वो स्ट्रो मैंने कुटुम एनजीओ है, कुटुम करके एक एनजीओ है बॉम्बे में, उनको दी थी। उनकी एक्टिविटी क्या थी, तो वो समर में बच्चों को, जो स्कूल स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एक्टिविटी करा रहे थे, क्राफ्ट एक्टिविटी, तो वहां पे यूज आ जाएगा उसका। बाकी वरना कहाँ पे जा रहा था, डंप यार्ड या किसी भी बफेलो एंड काऊ के पेट में जा रहा था। शुगर केन जिसमें टाई होके आ रहा था, लाइक शुगर केन को टाई करना पड़ता है जब वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम फार्म और एनी वेंडर टू पर्टिकुलर शुगर केन वेंडर, तो इसकी मदद से रोप है, ओके, उसकी मदद से उसको टाई करते थे, या प्लास्टिक का भी होता है जनरली। इसकी मदद से मैंने ये अराउंड 10 मीटर, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, पीसीस रहते हैं, उसको आप कनेक्ट करोगे तो 10 मीटर जितना ये सेव किया था वेस्ट होने से। ओके, वैसे आप नियर बाय कोई भी टेलर के पास चले जाओगे, अगर इधर जेंट्स हो या लेडीज टेलर हो, जनरली जेंट्स टेलर में से छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे आपको, जिसकी मदद से आप लाइक इसमें से आपको एक बड़ा सा फैब्रिक बनाना स्टिच करके बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट ऐसे छोटे छोटे टुकड़े की मदद से आप पिलो बना सकते हो। सिंपल, आप पिलो एप्लीकेशन उसकी ले सकते हो, या उसमें से बड़े बड़े टुकड़े को स्टिच करके आप कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ये जो रील होती है, ओके, थ्रेड की जो सपोर्टेड होता है जो लास्ट में, वो एक कार्डबोर्ड मटेरियल होता है, तो आप उसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो। मैं तो बोलता हूँ छोटे से छोटी एटीएम की टिकट भी हो, लाइक, या हमारा जो साबु का पैकेजिंग होता है वो क्या होता है, ऊपर प्लास्टिक होता है, इनसाइड कुछ सोप्स में पेपर का एक लेयर होता है, तो वो लेयर आप रिसाइकलिंग में दे सकते हो पेपर वाले को। ये नायलॉन रस्सी जो है, थ्रेड, वो, और ये सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट किया था और ये रिसाइकल कर दिया था। या कोई भी स्टूडेंट है जो क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो रॉ मटेरियल मेरे पास से ले सकता है। वैसे ही जीरो वेस्ट शॉपिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही मैं प्रैक्टिस करूंगा या आपको भी सजेस्ट करूंगा कि घर में जितना भी प्लास्टिक हो उसको डंप कर दीजिए। नहीं, जो भी प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल है उस प्लास्टिक को रीयूज कीजिए। पहला काम क्या करना है हमें, पहला हमें ये काम करना है कि रिफ्यूज
करना है। जनरली अगर आपको कोई वेजिटेबल बाहर से, लाइक फॉर एग्जांपल कोई सब्जी आपको खानी है, ओके, बाहर से ऑर्डर करना है, पंजाबी सब्जी, दाल, चावल, जीरा राइस वगैरह, ऐसा ही कोई भी मीन्स फूड आपको ऑर्डर करना है या आप लेने जा रहे हो, तो अपना पैकेजिंग लेकर जाओ। स्टील, जनरली स्टील, एल्यूमिनियम या कोई सेफ प्लास्टिक हो आपके पास, प्लास्टिक कंटेनर, वो लेकर जाओ। तो नॉर्मल जो राशन होता है उसको कॉटन बैग में या ऐसी फैब्रिक बैग आती है वो आप रीयूज कर सकते हो। जनरली ऐसी बैग को भी अवॉइड करना चाहिए। इट कंटेन नॉन वूवन प्लास्टिक और पॉलीमर। कॉटन या आपका पुराना जीन्स हो उसकी मदद से ऐसे बैग्स बना देनी चाहिए छोटी छोटी, उसमें आप अपना ग्रोसरी ला सकते हो। या ऐसे पुराने डिब्बे हो आपके पास, वहां पे अगर आप अपना मीन्स डेली नीड जो राशन है नॉर्मली डे टू डे वो आप ला सकते हो। ओके, बाद में ये स्टूडेंट है आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर ब्रांच की। क्या हुआ था, लाइक इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट व्हाइट बोर्ड इज व्हाइट और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज कंपल्सरी। जब आप नया बोर्ड ऑर्डर करते हो तो उसके पैकेजिंग में से पेपर आता है। अगर आप लेमिनेट यूज करोगे सनमाइका, उसके ऊपर भी एक पैकेजिंग आता है पेपर का। जनरली हम क्या करते हैं, वो पेपर को फोल्ड करके स्क्वीज करके डस्टबिन में डाल देते हैं, बट वो पेपर अच्छे से आयरन किया हुआ आता है, लाइक प्लेन आता है, उसको कट करके स्पेसिफिक साइज में कट करके आप इंडिपेंडेंस डे विद नेचर डेवलप कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, अपसाइक्लिंग बोलते हैं, रीपर्पस बोलते हैं। इसका पर्पस था टू प्रोटेक्ट अवर बोर्ड और अवर मटेरियल, लाइक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना था। और बाकी तो क्या था, वो वेस्ट ही था, बट उसमें से आपने नया पर्पस फाइंड आउट किया, या उसको आप रिसाइकलिंग में दे सकते हो, आपके लिए एक अर्निंग भी होगी। ये बोल सकता हूँ लाइक ये वेस्ट था मेरे लिए, ओके, गलती से भी फॉर एग्जांपल कभी जोमेटो ऑर्डर कर दिया आपके फैमिली मेंबर में या आपके रूम पार्टनर में। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू लिव इन अ हॉस्टल और इन अ रूम, कभी कभी आपके पास कंटेनर आ जाते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग में ही आते हैं। तो ऐसी चीजों को आप डस्टबिन में मत डालिए, उसको आप इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं, रीपर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही सस्टेनेबल फैशन, क्या आप बोल सकते हो कि हमारा जो फैशन इंडस्ट्री है वो कितनी चीजों को पोल्यूट करता है? वो हमारे मेन सोर्स को पोल्यूट करता है, वाटर। हम जो कपड़े पहनते हैं, लाइक फैब्रिक पहनते हैं, उसके ऊपर जो कलर होता है, डाइंग बोलते हैं, डाइंग प्रोसेस से कलर अप्लाई होता है फैब्रिक के ऊपर, तो वो एक हाईएस्ट पोल्यूटर है वाटर का। ओके, एंड हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ वाटर जो होता है वो हमारे फैब्रिक में होता है। एक डेनिम जीन्स जो हम पहनते हैं, सिंगल डेनिम जीन्स कंज्यूम 16,000 लीटर वाटर। कहां से लेकर, लाइक डेनिम के लिए जो कॉटन यूज होगा या जो पॉलीमर यूज होगा, पॉलीमर एंड कॉटन, उसके प्रोडक्शन से लेकर हमारे पास जो डेनिम आता है वहां तक इट कंज्यूम 16,000 लीटर वाटर, सिंगल डेनिम। कैन यू बिलीव इट? आप स्टडी कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। और वो 16,000 लीटर वाटर ना ही आप उसको रीयूज कर पाओगे, ना ही आप उसको रिसाइकलिंग कर पाओगे। इवन वो हमारे बाकी सोर्स को भी, अगर आप उसको डंप करोगे रिवर में या नाले में छोटे से, वो हार्मफुल
इफेक्ट देगा। लाइक हम ऐसी केमिकल डाई यूज करते हैं जिसकी मदद से हमें नुकसानी है, और ऐसे काफी हमारी डाइंग प्रोसेस है वो टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करता है। तो जनरली लाइक अपनी जीवन में सोचो, हमारे पुराने जो दादा परदादा हैं उसके वार्डरोब में कितने कपड़े थे? 5, 10, 15, 20, 25, कितने? 10 या 15 कपड़े ही मिल जाएंगे। या हमारा भी वार्डरोब अगर आप देखो तो हार्डली 10 या 15 कपड़े ही हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं। और कोविड सिचुएशन में तो सबको पता ही है वर्क फ्रॉम होम में हालत क्या है। वर्क फ्रॉम होम में तो ऑलमोस्ट घर से ही वर्क करना है, बाहर निकलना ही कम है, तो काफी सारे कपड़े ऐसे ही सड़ रहे हैं अंदर वार्डरोब में, मेजोरिटी। ओके, जिसको बाहर जाना हो रहा है वो बात अच्छी है। तो बने तब तक जितनी जरूरत है उतने ही कपड़े लीजिए। फैब्रिक जो लीजिए वो लाइक ऑर्गेनिक कलर क्लॉथ लीजिए, और खादी से बने हुए, लाइक जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी हमें बोल गए, स्वदेशी। अगर हमें हमारे देश को अपलिफ्ट करना है, हमें अगर ग्रास रूट लेवल को या विलेज सिटीजन्स को अपलिफ्ट करना है, तो हैंड वूवन फैब्रिक यूज कीजिए। और जनरली खादी जो प्रीफर करती है वो नेचुरल डाइंग प्रोसेस प्रीफर करती है। वैसे ही एक डाइकू करके कंपनी है, DYE, डाइकू, COO, नेदरलैंड बेस्ड कंपनी है। उन लोगों ने जीरो वाटर डाइंग प्रोसेस इन्वेंट की हुई है। ओके, ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है जहां पे वाटर की एक बूंद भी यूज नहीं होती। वहां पे वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी एक क्लोज लूप प्रोसेस है। एनवायरमेंट का लाइक जनरली 95% ऑफ कार्बन कंज्यूम करते हैं, मतलब वो नहीं पूरा वर्ल्ड का, बट उसके नियर बाय एनवायरमेंट का। और नेचुरल डाइंग सॉल्यूशंस देंगे जो हार्मफुल केमिकल फ्री हो। तो अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है तो डाइकू कंपनी से वो परचेस कर सकते हो आप, डाइंग प्रोसेस, डाइंग टेक्नोलॉजी। ओके, डाइकू। अब दूसरा एक सॉल्यूशन जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो इन कोविड एरा। बताइए हमने कितने, लाइक एवरी हाउस होल्ड कंज्यूम हाउ मच अमाउंट ऑफ लेमन, हाउ मच अमाउंट ऑफ साइट्रस फ्रूट? ऑन एन एवरेज हम लाइक एक वीक में 2 से 3 kg तो कंज्यूम करेंगे ही, अगर आपके यस घर सर। में किसी को कोविड हुआ है। सर बिना कोविड भी है ना, रोज जैसे 5 से 6 पीस हो जाते, तो उसका टोटल इतना ही होगा ना, वीक में 2 किलो तक तो हो हाँ, जाएगा। होगा ही। तो वो पील का, लाइक हम जूस, तो साइट्रस जूस है उसको तो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, बट उसके पील में से भी आप काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं वो पील के। फर्स्ट क्या है, लाइक लेमन पील होगी तो उसका अच्छा सा अचार भी बनता है। गुजराती में क्या है, अथाणा, अचार बनता है, पिकल्स। ओके, लेमन पिकल अच्छा बनता है गुड़ के साथ। ओके, घर में पता ही होगा, या मेरी मम्मी को अच्छे से पता है, लाइक अच्छा बनाना आता है। लेमन पील अचार अच्छा बनता है, या लेमन का भी बनता है और लेमन पील का भी बनता है। एक एप्लीकेशन है, लाइक यहाँ पे मैंने सिर्फ लेमन पील्स लिए हुए हैं जो मैं सोडा सोप से और रेस्टोरेंट से कलेक्ट करता था। और मेरा घर का जो, ये मेरी प्रैक्टिस है, अभी भी प्रैक्टिस चालू ही है, बट ये जो पिक्चर्स हैं वो मैं जब बैचलर था, ओके, जब मैं पेइंग गेस्ट की तरह रहता था बड़ौदा में, तब की प्रैक्टिस के फोटोग्राफ्स हैं। ऐसे लेमन पील्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक बायो एंजाइम में। बायो एंजाइम एक लिक्विड बनेगा, वो प्रोडक्ट में दिखाता हूँ, प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक क्वांटिटी आपको लेनी है साइट्रस पील। साइट्रस पील आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल लेमन पील्स, ऑरेंज पील्स,
ओके, पाइनएप्पल के जो पील्स हो, वो जो भी मीन्स हमारे खट्टे फ्रूट्स हैं उसकी पील्स आप यूज कर सकते हो। एक क्वांटिटी मतलब एक ये कंटेनर भर के मैंने पील ली हुई है, लेमन पील, उतनी क्वांटिटी का जेगरी लो, गुड़, और 8 टाइम्स वाटर आप एक क्लोज कंटेनर में ऐड कर दो। क्या करना है मुझे, 1 पार्ट लेमन पील, 1 पार्ट जेगरी, और 8 पार्ट मतलब ये कंटेनर 8 बार भर के पानी ऐड करना है। छोटी बोतल में भी कर सकते हो, पर बड़ी बोतल लाइक वाइड ओपनिंग हो, वाइड ओपनिंग मतलब ऐसी कोई कंटेनर हो, वहां पे आप कर सकते हो। और उसको 90 दिन के लिए क्लोज करके रख दो। फॉर हाउ मच डे, फर्स्ट टाइम आपको 90 दिन 90 डेज के लिए, अप्रोक्सीमेट 3 मंथ्स आपको उसको रखना है। डेली आपको क्या करना है, ओपन करना है उसका नेप, गैसेस जो प्रोड्यूस होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। वहां पे क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल। क्लोज करते हैं मतलब वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो एनारोबिक प्रोसेस होगी और बैक्टीरियाज डेवलप होंगे जो साइट्रस पिल को डिग्रेड करेंगे। डिग्रेड करके क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं एंड अल्कोहल बनाते हैं। वो जो सॉल्यूशन बनता है, लाइक इसको फिर बाद में स्ट्रेन कर दो और ऐसे बोटल्स फिल कर दो। ओके, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है, 3 पर्पज है इसका। ये जो लिक्विड बनेगा उसके 3 पर्पज हैं। आप अपने कटलरी को वॉश करने के लिए, बर्तन को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। क्या करो, 90% ये यूज करो, 95%, और 5% आपका कन्वेंशनल यूज कीजिए। कोई भी आप सोप या लिक्विड यूज करते हो वो ऐड कीजिए, या नेचुरल आप सोप नट यूज कर सकते हो, अरीठा सोप नट, वो भी एक अच्छा सा सर्फेक्टेंट है नेचुरल, जो आप हेयर वॉश करने के लिए या अपने क्लॉथ को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, दूसरा, क्लॉथ वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। क्लॉथ में भी आप सिमिलर 95% ये लिक्विड डालिए, 5% आपका कन्वेंशनल पाउडर यूज कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है। इसमें झाग जो फोम जनरेट होते हैं वो फोम जनरेट नहीं होता। तो जनरली हमारी मेंटालिटी रहती है भाई, अगर कोई सोप में झाग ना बने तो वो क्लीन नहीं करेगा, ऐसी हमारी मीन्स एक सोच होती है, थॉट प्रोसेस होती है, मेंटालिटी होती है। तो ये 2 पर्पस हुआ है, बर्तन को साफ करने के लिए, क्लॉथ को साफ करने के लिए, क्लॉथ वॉशिंग। एंड थर्ड वन, एज अ सर्फेक्टेंट क्लीनर। अगर आप पोता कर रहे हो, लाइक फ्लोर आपकी क्लीन कर रहे हो, तो उसमें ऐड कर सकते हो। आपके टॉयलेट या वॉशरूम को साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो। हार्मफुल एसिड को यूज करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे ये चलेगा। और अपने प्लांट में इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, अगर आपने रोज या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस प्लांट, रोज प्लांट, एलोवेरा, तुलसी, ऐसे अगर आपने प्लांट्स रखे हुए हैं, तो उसको इंसेक्ट फ्री करने के लिए भी आप वाटर प्लस ये बायो एंजाइम का सॉल्यूशन बना सकते हो। ओके, तो उसके काफी सारे पर्पस हो गए। और दूसरा भी एक मेथोडोलॉजी है, लाइक ऑरेंज पील्स, ऑरेंज पील्स होती है, और लेमन पील्स का यूज करके आप फेस पैक और लेमन पील, ऑरेंज पील, मेथी जो हम यूज करते हैं,
एलोवेरा यूज करके हम हमारे लिए एक अच्छा सा शैम्पू भी बना सकते हैं। वो कभी फ्यूचर में मौका मिला तो वो डिटेल में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक होममेड चॉकलेट्स बना सकते हो, क्योंकि अगर मेरा बर्थडे हो और मैं मेरे फैमिली फ्रेंड्स को चॉकलेट दूंगा सेलिब्रेशन पार्ट में, वो कोई मैं मना नहीं कर सकता या कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट मत करो। बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग चॉकलेट फ्रॉम आउटसाइड, आप एक बड़ा सा पैकेजिंग लीजिए रो चॉकलेट का। सिंपलेस्ट वे में आपको बताता हूँ, बड़ा सा पैकेजिंग आता ही है चॉकलेट का, वो लीजिए और घर पे आप छोटी छोटी चॉकलेट्स बनाइए डिफरेंट शेप की, साइज की। मोल्ड इज अवेलेबल इन द मार्केट। या जो ये बड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये आइस ट्रे में किया हुआ है, बड़े बड़े पीसेस। और अगर आपको चाहिए फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, आपको डार्क चॉकलेट प्लस लाइट चॉकलेट प्लस स्ट्रॉबेरी या ड्राई फ्रूट चाहिए, तो वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये लाइट चॉकलेट है, ये डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन, और इनसाइड ड्राई फ्रूट भी है। मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन की चॉकलेट बनाई थी, या मेरे बर्थडे में मैं जनरली बनाता हूँ। और ये हो गया लाइक जनरली टेक्निकल फील्ड। अभी आपको दिखेगा सर तो मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये सब प्रोसेस हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं साइंस या उसको स्केल अप करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करनी ही पड़ेगी। बट ये मैंने जो डेवलप किए थे मशीन्स, लाइक प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन, लेफ्ट वन इज श्रेडर, प्लास्टिक श्रेडर। ये कैसे प्लांट्स है, लाइक ये आप अपनी सोसाइटी में, अगर आप कोई एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, अगर आप सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हो, जैसे आज जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हम सभी को आईएसटीडी ने, ओके, तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो, या जैसे कॉलेज जुड़ी हुई है हमारे साथ, कॉलेज हो, सोसाइटीज हो, हाउसिंग सोसाइटीज, तो वो ये पर्टिकुलर मशीन्स को अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं। इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे अराउंड 1 लाख, नियर बाई 1 लाख रुपीज़ का, और उससे भी कम अप टू 1 लाख रुपीज़, तो आप ये सब मशीन्स को इन हाउस या अपनी सोसाइटी में एस्टेब्लिश कर सकते हो। एक बार आपने उसको एस्टेब्लिश किया तो आप अपना खुद का प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल कर सकते हो अपने वहाँ पे, और अपनी खुद की नीड को खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हो। इसको चलाएगा कौन? तो एजुकेशन पॉलिसी जो नहीं आई हुई है, छोटा से छोटा मीन्स बच्चा भी उसको रन कर सकता है। मीन्स अपनी सोसाइटी में मल्टीपल फील्ड के लोग होते हैं, तो वो लोग उसको रन कर सकते हैं। इसकी मदद से आपकी सोसाइटी मीन्स हमारी सोसाइटीज डेवलप होगी और रिस्पॉन्सिबल बनेगी हमारे वेस्ट को हमारे सोर्स में ही रिसाइकल करने के लिए। उसकी मदद से आप बाउल बना सकते हो। प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे, लाइक हमारे स्टूडेंट्स वर्क कर ही रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रोडक्ट दिखाई थी वो प्रोडक्ट भी है ही, वो भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए ये था ये श्रेडर मशीन, प्लास्टिक श्रेडर, जो प्लास्टिक वेस्ट को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। और ये है हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मदद से आप अपना मोबाइल कवर, स्पिनर, प्लास्टिक टाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, हैंड ऑपरेटेड। वैसे एक दूसरा प्रोजेक्ट टेट्रा पैक, ये हर किसी को पता होगा। टेट्रा पैक, अमूल छाछ जो मस्ती आती है, या अमूल प्रीमियम जो बटर मिल्क आती है, लस्सी आती है, फ्रूटी आती है, एप्पल का जो पैकेजिंग आता है, वो टेट्रा पैक से बनता है। टेट्रा पैक मतलब इट इज मेड आउट ऑफ 3 मटेरियल, 75% पेपर मटेरियल, 20% एल्यूमिनियम एंड 20% प्लास्टिक एंड 5% एल्यूमिनियम। 3 लेयर होते हैं उसके। इनसाइड प्लास्टिक, पॉलीइथिलीन प्लास्टिक रहता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम रहता है, उसके बाद में रहेगा पेपर,
जिसका थिक पार्ट रहता है, और उसके बाहर की तरफ प्रिंटेड पेपर एंड प्लास्टिक पैकेजिंग होगा। बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर की चीज डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो वो डिग्रेड होगा, और बाहर अगर कोई रेन या वगैरह आ जाए तो अंदर का हमारा मटेरियल डैमेज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पैकेज रहता है। तो वो पैकेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैंने एंड मेरे स्टूडेंट्स ने, अभी में से ग्रुप जो है मेरा, वो वर्क कर ही रहा है इंडस्ट्री स्केलेबल और डोमेस्टिक स्केलेबल टेट्रापैक मटेरियल रिकवरी प्लांट, उसके ऊपर मेरे स्टूडेंट्स वर्क कर ही रहे हैं। इनिशियली ये जो सीट बनाई हुई है, क्या करना है, टेट्रापैक को श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद उसमें से आप पेपर पल्प निकाल सकते हो, और पेपर पल्प के बाद ऐसा पेपर सीट बना सकते हो। ये इनिशियल प्रोटोटाइप लेवल है। प्रोटोटाइप डेवलप में जो पेपर डेवलप किया था मेरे स्टूडेंट्स, और रेसिडुअल जो बचा हुआ है, जो प्लास्टिक एंड पेपर बचा, सॉरी प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम बचा हुआ है, उसकी मदद से आप ऐसी सीट बना सकते हो, आइदर इपोक्सी यूज करके या सीट प्रेस यूज करके। ओके, कंप्रेशन करोगे आप, अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो क्या होगा, प्लास्टिक मेल्ट होगा एंड वो एल्यूमिनियम को होल्ड करेगा। डिफरेंट जो एल्यूमिनियम के पीसीस होंगे उसको होल्ड करेगा, अच्छी सी एक सीट मिलेगी। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही है, पर इंडिया में 2 या 3 कंपनी है, हार्डली 2 कंपनीज आर देयर which run this particular plant। तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी वेस्ट जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है, ऐसे टेट्रा पैक काफी सारे प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेपर मटेरियल में एंड स्ट्रक्चर मटेरियल में। ओके, तो ये चीजें प्रैक्टिस थी जो एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग में करता हूं। दूसरी अगर हम बात करें, लाइक इफ टाइम परमिट, कुछ एक्टिविटीज हैं लाइक बेसिक। हम अगर बात करें, सोनम वांगचुक को कितने लोग जानते हैं, मिस्टर सोनम वांगचुक? सर हाँ, Sir, his story was there in Three Idiots movie. yes, like we all know Mr. Sonam Wangchuk as Phunksuk Wangdu। ओके, तो आइस टूपा सर्च कीजिएगा। आइस टूपा मतलब आर्टिफिशियल आइस ग्लेशियर। लद्दाख क्या है, लद्दाख एक माउंटेन डेजर्ट है। माउंटेन डेजर्ट मतलब डेजर्ट बट एक एट अ हाई एल्टीट्यूड। वहां के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, वो हम हमारे बड़ौदा के हिसाब से या बॉम्बे के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जियोग्राफिकल कंडीशन का ओन सॉल्यूशन होता है। तो वहां पे हर बार पानी का दिक्कत होता है। जब स्प्रिंग सीजन आती है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तब उन लोगों के पास पानी नहीं रहता। भले ही बाजू में ही हिमालयन ग्लेशियर हैं, वो मेल्ट होते हैं और वो पानी बह जाता है डाउनवर्ड साइड में। तो आइस टूपा का कॉमन, लाइक आइस टूपा इन्वेंट किया मिस्टर सोनम वांगचुक एंड हिज टीम, लाइक मिस्टर सोनम वांगचुक स्कूल लेवल science and mathematics is used to find out this particular ice glacier, artificial ice glacier, जिसको आइस टूपा बोलते हैं। अब ऐसी कौन सी जियोमेट्री है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, मीन्स वॉल्यूम ज्यादा और सरफेस एरिया कम हो?
सर पानी की बूंद। जियोमेट्री बोली हुई है मैंने। जियोमेट्री कौन सी होगी? स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, मीन्स एक क्यूब, स्पीयर। स्पीयर बोलेंगे। वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वो एक 3D जियोमेट्री होनी चाहिए ना। सर्कल इज 2D जियोमेट्री, स्क्वायर क्यूब, रेक्टेंगल क्यूब, पिरामिड और स्पीयर, ऐसी सब जो जियोमेट्री है, उस जियोमेट्री में स्पीयर जो है, अर्थ का जो शेप है हमारा स्पीयर, उसका सरफेस एरिया कम है और वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों मैंने ये चीज बोली? अगर आप किसी भी चीज को बनाते हो, फॉर एग्जांपल आइस कब मेल्ट होगा? जब उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तब। आइस कब मेल्ट होता है? जब डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर इम्पार्ट होती है या हीट अप्लाई होती है, और वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसकी सरफेस के मीडियम से। पहले क्या मेल्ट होगा? उसकी सरफेस। तो अब स्पीयर को तो क्रिएट करना डिफिकल्ट है, बट आप पिरामिड स्ट्रक्चर बना सकते हो नेचुरली। अब किया क्या? सिंपल, सबको पता है। अगर आप कोई पानी वाटरफॉल हो रहा है कहीं किसी एल्टीट्यूड से, आप वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में पाइप कनेक्ट करते हो, और पाइप का एंड आप नीचे की तरफ कोई हाई एल्टीट्यूड मींस वो एक पाइप कनेक्ट करते हो और उसको ग्राउंड में रखते हो। उसका एक एंड होगा हाई एल्टीट्यूड में वाटर स्ट्रीम में और दूसरा पाइप होगा ग्राउंड में। तो आपको हाई प्रेशर में पानी मिलेगा, सप्लाई होगा। वो पानी लाइक ऐसा हो तो हम उसको देख ही लेते हैं, स्क्रीन विजिबल है ही। ओके, कितना टाइम है? Sir, we had already closed the Okay. time, so like if you can close it. We can conclude, sir. ओके, श्योर श्योर। सो आइस्टूप आप देख सकते हो, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी प्रोजेक्ट और फॉर एनी डिस्कशन। लाइक अगर अभी भी कुछ डिस्कस करना हो तो भी हम डिस्कस करते हैं, और लेटर ऑन लाइक यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया लिंक्डइन, वाया ट्विटर, वाया इंस्टाग्राम, वाया फेसबुक और वाया कॉल। बट जनरली हो सके तब तक ये सब मीडियम से कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच ISTD for such a wonderful opportunity. I hope I am able to convey some good thought to all. And let's take pledge like आज के बाद हम मिनिमम वेस्ट जनरेट करेंगे और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे टुवर्ड्स आवर वेस्ट। जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबली आप डिस्पोज करोगे। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. If you have any questions from the participants, we will have one or two questions now, and then we'll wind up the session. सर नमस्कार सर। Paresh sir, બોલો sir. Paresh sir, please. હા, ખૂબ સરસ માહિતી મળી સર, અને એકદમ બેઝિક ફંડા, અને દરેક કરી શકે, આમાંથી કોઈ ના કરી શકે એવું કશું હતું જ નહીં, અને એકદમ સરળ શબ્દોની અંદર તમે વાત કરી. હવે મારો એક પ્રશ્ન એ છે, અત્યારે COVID-19, તો હું એક સેવા સાથે સંકળાયેલો છે. અમે દરરોજના 200 થી 250 ટિફિન પાર્સલ મોકલીએ COVID-19 પેશન્ટ અને ફેમિલીને. એ સંપૂર્ણપણે જે છે એ પ્લાસ્ટિક અંદર ઉપયોગ થાય છે. તો હવે એની માટે આપણે શું વિચારી શકીએ કે એ સિવાય બીજું, કેમ કે બહોળી સંખ્યામાં દરરોજ મોકલવાના હોય છે. સિમિલરલી લાઈક નોબેલ કોઝ જે કરે છે સંસ્થા, લાઈક તમે ફૂડ પ્રોવાઈડ કરો છો,
હા, તો કોઈ એવો દાતા મળી જાય ફોર એક્ઝામ્પલ, અથવા જે ફેમિલી છે પોતાની, લાઈક કોઈ પણ ઇન્ડિયન આપણે ગુજરાતી કુટુંબ હોય ને, એમની પાસે Yes. ટિફિન તો હોય જ, જનરલી ટિફિન તો એક હોય જ અચ્છા. ઘરમાં. હા, કદાચ સિસ્ટમ થઈ શકે તો ઘણું સારું. બાકી પછી જનરલી એમાં શું થાય છે કે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય. હા. મેઇનલી એક શું અચ્છા સર. ક્લીનિંગ રાખવું પડે, ક્લીન. क्लीनिंग सराई दूल्हा करके हैं साउथ में, वो एक अच्छा। हाँ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके इवेंट को मैनेज करेगी. लाइक मीन्स जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजेगी. उनके पास खुद की स्टील कटलेरी भी है. ऐसा कोई अगर आपको मिल जाता है लाइक सॉल्यूशन हमारे यहाँ गुजरात में, तो आप कर सकते हो. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. लाइक पर्सनली मेरे मैरिज में मैंने इंसिस्ट किया था कि कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी यूज नहीं होगी. तो थैंक्स टू लाइक माय फैमिली मेंबर्स फ्रॉम बोथ साइड, they are agree, and like there are hardly around 250 gram single use plastic is used in uncertain condition. like इवेंट को हम रोक नहीं सकते, कभी जरूरत पड़ी तो वो यूज करना पड़ा था. बाकी मेजोरिटी 95% we use steel cutlery in our function. Thank you very much, sir. So officially, like we, as from the ISTD Anand chapter, I formally thank you, Jaimin Bhatt sir, for this wonderful session. As Paresh sir has already mentioned, very basic level that everybody can understand and can use in routine life. And we thank you, the Nagpur College as well, who has asked the students to join, and so that we can spread our message to the society very well. And we thank you all the participants who has joined us today, and would like to inform you that we have our ISTD Anand YouTube channel. So we'll be putting this video on our YouTube channel within a couple of days time, so you can refer your friends to revisit it. Even you can revisit and use the content given by the sir for your day-to-day life to save our environment. Thank you very much, and see you soon for next Friday forum on the next Friday with the different topic and different speaker. Thank you very much.